Last week, our family went to climb up a mountain. पिछले सप्ताह मेरा पूरा परिवार एक पहाड़ चढ़ने के लिए गए थे। It was not an easy task. और वो आसान नहीं था। It took some 4 hours to reach the top. और ऐसा लग रहा था कि असंभव ही है ऊपर पहुंचना। But when we reached the top, we all felt it was worth that effort. लेकिन जब हम ऊपर पहुंच गए थे तब हमें ऐसा लगा कि यहाँ आना बेकार नहीं गया। The view that we could enjoy from the top, और ऊपर पहुंचने के बाद जो नज़ारा हम देख पा रहे थे वो काफ़ी अच्छा था। and also the cold, fresh air. और वो ऊपर की जो ठंडी और शुद्ध हवा। In the Bible, there is a beautiful verse in Habakkuk. और हबक्कुक में हम एक वचन देखते हैं। Habakkuk chapter 3, verse 19. हबक्कुक 3 उसका 19। The Lord God is my strength. हबक्कुक 3:19। The Lord God is my strength, and he will strengthen my feet like that of a deer. यहोवा परमेश्वर मेरा बहुमूल है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। And he will make me to walk on high places. और वो मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। So we all may be facing mountain-like situation in front of us. और ऐसा होगा कि हम हमारे जीवन में कुछ पहाड़ जैसे चुनौती का सामना कर रहे हैं। And struggling, how I am going to climb this mountain? और हम ये सोच रहे हैं कि ये पहाड़ को अब कैसे चढ़ें। How I am going to overcome all this difficulty that I see in front of me? और मैं ये सब मुसीबतों से कैसे जीत पाऊंगा जो मेरे सामने है। So we should remember that the Lord has promised that he will strengthen us. तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि वो हमें सामर्थ्य देगा। And especially it's a good picture, like God can strengthen our faith like that of a deer. और ये एक बहुत अच्छी बात है हमें याद रखना कि परमेश्वर हमें हमारी सहायता हमेशा करेगा। You know, like in a deer, they easily run up the hill. और जैसे हिरन वो पहाड़ पे एकदम आसानी से चढ़ जाते हैं। So that's a picture of which by which the Lord can encourage us. और ये एक पिक्चर को हम याद रख सकते हैं और इसके द्वारा हम प्रोत्साहन पा सकते हैं। Whatever may be the obstacles that we see in front of us, और कोई भी चुनौती हमारे सामने क्यों ना हो, with God, nothing is impossible. और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। We will never be tested ever beyond what we are able to bear. और हम अपने काबिलियता के उसके सहने के बाहर हम कभी परीक्षा में नहीं जाएंगे। God will always open a way or provide the strength for us. और परमेश्वर हमेशा कोई मार्ग खोलेगा या हमें सामर्थ्य देगा। This thought was coming to me. The Lord is constantly encouraging and challenges to come up higher, higher, my son, my daughter. और मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि परमेश्वर हमेशा हमें प्रोत्साहन करता है कि हाँ, और मेरे बेटा या बेटी ऊपर ऊपर आते रहो। We should not be happy enjoying life in the valley. और हमें खुश नहीं होना है अब हमारा जीवन जो एक नीचे के स्थल पे है, A lazy, take for granted kind of life. एक आलसी या हल्के में लेने वाला जीवन। And it is said the life in the valley, it is not even healthy. और जो नीचे का जो स्थल पे जो जीवन हम जीते हैं वो हेल्थी नहीं नहीं है। Spiritually also, if we live in that valley, it is not a healthy life. और एक आत्मिक जीवन में भी जब हम नीचे के स्तर पे ही जीते हैं तो वो हेल्थी नहीं है। Healthy, fresh, available on the top of the mountain. और जो अच्छा हेल्दी है वो पहाड़ के ऊपर ही है। So the Lord is inviting us, come up, come up. और परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहा है कि और ऊपर आओ, आप ऊपर आइए। We can read a verse from Revelation chapter 4, प्रकाशित वाक्य 4 verse 1. उसका एक We वचन, need to read the last the phrase written there. आखिरी लाइन उसका। It is the Lord inviting John. The expression there is come up here. और आखिरी लाइन में ऐसे परमेश्वर यूहन्ना का बुला रहा और कहा है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, Come up here, then I will show you some things. यहाँ ऊपर आओ और मैं तब तुम्हें दिखाऊंगा। So the Lord is inviting us in a spiritual sense to come up.
और परमेश्वर हमें बुला रहा है कि आप ऊपर आओ। And when you go up, we will see what the Lord wants to show us. और जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तब परमेश्वर हमें दिखाएगा। So in any areas of our life, the Lord wants to challenge us. और हमारे जीवन में कई जगह पे परमेश्वर हमें चुनौती देता है। So last week I was thinking, this desire came to my heart. My life should be free from bad moods. और पिछले सप्ताह मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे जीवन में बुरा मूड से हमें छुटकारा पाना है। I should never tell others, today I am not in a good mood. और मैं कभी किसी को ऐसे ना कहूँ कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। We all God's children should be always in good mood. हम परमेश्वर के बच्चे हमेशा एक अच्छे मूड में रहने चाहिए। I always should have a joyful spirit. और हमेशा मेरे अंदर एक खुशी वाली आत्मा रहनी चाहिए। And that's what the Lord wants us to convey even to others. और यही परमेश्वर दूसरों को भी बताना चाह रहा है। Rejoice always, and I say again, rejoice in the Lord. हमेशा खुश रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर में सदा खुश रहो। And the Lord also wants to challenge and encourage to give us live a life free from anxiety and worries. और परमेश्वर भी चाहता है हमें ऐसा जीवन देना जहाँ पे हम चिंता से मुक्त हैं। A life free from complaining, a life free from murmuring, accusing others. एक जीवन जहाँ पे कुड़कुड़ाहट से दूर है, कंप्लेंट करने से दूर हैं हम। We will be able to partake of the life progressively as we climb up, listening to the invitation from the Lord. और जब हम परमेश्वर का सुन के ऊपर बढ़ते हैं तब हम ऐसा जीवन पा सकते हैं। This is reflected in Colossians chapter 3 verse 2. कुलोसियो 3:2। Set your mind on things above, not on the things that are on earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Yeah, so our mind should be set on things above, not on the valley. हमारा मन स्वर्गीय बातों पे लगे रहना चाहिए कि ना कि संसार नीचे की बातों पे। We should get used to thinking things above. हमें बस ऊपर की बातों पे मन लगाना है। And that is what we should cherish and meditate and desire in our hearts. और इसी बात की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए और इसी बात पे हमारा मन लगे रहना चाहिए। Not lowly, childish things, low level of things. और नीचे के स्थल वाला जीवन नहीं, बच्चों के समान नहीं। During the Old Testament times, और पुराने नियम के समय में the temple of God, the Jewish temple, was built on the top of a mountain. और परमेश्वर का जो मंदिर था वो पहाड़ के ऊपर बनाया गया था। And people used to joyfully come ascend the hill. और लोग बहुत खुशी से उस पहाड़ पे चढ़ के जाते थे। And to listen what the Lord wanted to speak to them. और परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है वो सुनने के लिए जाते थे। Yeah, that's a verse, Isaiah chapter 2 verse 3. यशायाह 2:3। So it says that, come up, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, and we may walk in his paths. यशायाह 2:3। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। So our desire should be to listen what the Lord wants to teach me. और हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है। So we can hear that when we seek the Lord. और हम ये तभी सुन सकते हैं जब हम परमेश्वर को खोजते हैं। And when we look to the face. और जब हम उसके चेहरे को देखते हैं। And the Lord will teach us. और परमेश्वर हमें सिखाएगा। And we know that in one place it's written, the Lord's ways are not our ways. और हम जानते हैं एक जगह पे ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर का मार्ग है वो हमारा तरीका नहीं है। We look at that verse. उस वचन को देखेंगे। That is Isaiah chapter 55. यशायाह 55:8. For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways. यशायाह 55:8। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। And verse 9,
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। So the Lord's thoughts are not like our human thoughts. और परमेश्वर का विचार हम मनुष्य के विचार के समान नहीं है। And the difference is like heavens are higher above the earth. और How is the difference? और वो फर्क इतना है कि जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में जितना अंतर है उतना वो फर्क है। So the Lord has called us to be partakers of His nature. और परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम उसके स्वभाव में सहभागी हो सके। So when we seek Him, increasingly, progressively, we can understand His ways. और जब हम उसको खोजते हैं तब हम उसके तरीके को विचार को हम समझ पाएंगे। And we know that is better than my ways. और हम जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है हम मेरे खुद के विचार से। How different is God's ways than my ways? और परमेश्वर का विचार कितना अच्छा है और मेरे विचार से। So we should get increasingly used to God's ways. और हमें इस बात से हमें इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि परमेश्वर का विचार ज्यादा अच्छा है। And we should also learn to look at things how God look at things. और हमें उसी प्रकार चीजों को देखना है जैसे परमेश्वर देखता है। That will bring us lot of comfort and encouragement. और ये हमारे लिए बहुत शांति और प्रोत्साहन लेकर आएगा। You know, when Jesus was on earth, He always lifted people up. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था उसने हमेशा लोगों को ऊपर उठाया, Especially people who were despised by others. और खासकर कि उन लोगों को जिनको दूसरे लोग तुच्छ जानते थे, People who made mistakes in their lives. और लोग उन लोगों को जिन्होंने जीवन में गलतियां करी हैं। No, people, so you made a mistake. You had no hope. Get lost. और लोग उनसे कहते थे कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, यहाँ से चले जाओ। Jesus held their hands, lifted them up. लेकिन यीशु मसीह ने उनका हाथ उठाकर उन्हें ऊपर उठाया, हाथ पकड़कर ऊपर So उठाया। when we share God's thinking, we will also able to do like that. और जब हम परमेश्वर का विचार हमारे अंदर लाएंगे तब हम ये कर पाएंगे। We will not condemn others. हम दूसरों को दोष नहीं लगाएंगे। We will not look at people with a judgmental eye. हम किसी और को एक न्याय वाले आंखों से नहीं देखेंगे। Imagine, if Lord is always looking at you with a judgmental eye, where we will be? अगर ऐसा समझो कि अगर परमेश्वर हमें बस न्याय वाली नजरों से देखेगा तो हम कहाँ खड़े रह पाएंगे। So when we understand God's ways and God's thought, we will also not judge others looking things externally. और जब हम परमेश्वर को खोजते तब हम भी ऐसा ही जी पाएंगे जहाँ पे हम दूसरों को वो न्याय वाली नजरों से नहीं देखेंगे। We know the story of that Jesus encounter with that Samaritan woman. और हम इस कहानी को जानते हैं कि जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिलते हैं, A woman who was divorced 5 times. और वो स्त्री जो 5 बार तलाक ले चुकी थी। I never heard or read or even seen anybody who was divorced 5 times. मैंने अब तक ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसी स्त्री जिसने 5 बार तलाक लिया हो। You can imagine how the neighbors, people around look at such a person. और आप सोच सकते हो कि ऐसी स्त्री को आसपास के लोग कैसे देखते रहेंगे। And all the more she is fed with all her marriage and now she living with a man who is not her husband. और इतना सब होने के बाद भी अब वो उस व्यक्ति के साथ रह रही है जो उसका पति नहीं है। She could not face anybody. She would come to draw water in the village when nobody is around. वो किसी को चेहरा नहीं दिखाती थी, जब वो पानी भरने कुएं के पास आती थी जब कोई नहीं रहता था कुएं के पास। But Jesus waited for her. लेकिन यीशु मसीह ने उसका इंतजार किया। What a beautiful story is that. ये कितना खूबसूरत कहानी है। Jesus spoke things about worship, true worship to her. और यीशु मसीह ने उससे सच्ची आराधना के बारे में कहा। Even when disciples saw when Jesus was, they what is he doing? Why is he talking to this woman? और जब यीशु मसीह के चेलों ने भी देखा तो वो कह रहे थे कि यीशु मसीह इस स्त्री से क्यों बात कर रहे हैं। But the Lord used that woman who was despised by everyone. लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री का इस्तेमाल किया जिसे सब लोगों ने तुच्छ जाना। Through her, many people from that Samaria came to faith. और उसके द्वारा समरिया से बहुत सारे लोग विश्वास में आए। And you know how God, the Jesus lifted her life, changed, transformed her life. और आप जानते हैं, देखा है आपने कि कैसे उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। So we should look at others the way Jesus looked at others. और हमें इसी प्रकार देखना है जैसे यीशु मसीह ने लोगों को देखा। It is very easy to despise others
look down on others, और ये बहुत आसान है दूसरों को नीचा करना या उनको तुच्छ नजरों से देखना, making people to think that they are inferior, lower than us. और लोगों को ऐसा महसूस कराना कि वो हमसे नीचे हैं। But Jesus never did that. यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया। So we can get used to the way how Jesus looked at others. और हमें इसी चीज की आदत हमें हमारे जीवन में डालनी है। Another story is the story of Mary Magdalene. और एक और कहानी है मरियम मगदलिन के बारे में। No, Jesus cleansed her from 7 demons. और यीशु मसीह ने उसे 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। She became his disciple. और वो यीशु मसीह का चेली बनी। And not only that, when he was resurrected, who first met Jesus? और इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह फिर से जीवित हुआ तो सबसे पहले कौन उससे मिला? It was not the mother of Jesus, Mary. और वो परमेश्वर यीशु मसीह की माँ मरियम नहीं थी, It was Mary Magdalene, in whom there were 7 demons. लेकिन वो मरियम मगदलिन थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। So what are the ways of the Lord? क्या ही अद्भुत कार्य हैं परमेश्वर के। And we should get used to that higher ways of God, higher thoughts of God. और यही उच्च विचार के हमें हमारे जीवन में आदत डालनी जो परमेश्वर के हैं। Psalm 24:3. भजन संहिता 24:3 It says that who may ascend into the hill of the Lord? भजन संहिता 24:3 यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। And in the next verse we read, the one who has pure hands and a pure heart, 4 वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, and in whose heart there is no deceit. जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। Yeah, quality to ascend the hill of the Lord is pure heart. और परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ने का एक ही क्वालिटी है कि शुद्ध हृदय। It's not written those who are perfect. ऐसा नहीं लिखा है कि जो सिद्ध हैं वही लोग, It's written those who have pure heart, ऐसा लिखा है कि निर्दोष हृदय, and also those who have no hypocrisy. और जिनके अंदर पाखंड नहीं है। There's no deceit. Deceit means hypocrisy. जिसके अंदर ढोंगीपन नहीं है। So may God help us to develop that desire to receive the invitation of the Lord to come up higher. और परमेश्वर हमारे अंदर ये इच्छा दे कि जो परमेश्वर हमें ऊपर आने के लिए बुलाता है हम वो सुने। We read from 1 Corinthians chapter 3. 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय। Paul is telling certain things to Corinthian believers. और पौलुस कुरिन्थियन के विश्वासियों को कुछ बातें कह रहा है। He is saying in verse 1 that I have been talking to you as though you were still just babies in Christian life, who are not following the Lord. और एक वचन में ऐसा कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। Yeah, he's saying I am not able to talk to you like a mature Christian, healthy Christians. और पौलुस ऐसा कह रहा है कि मैं आप लोगों से एक मैच्योर इंसान के, एक बड़े समझदार इंसान जैसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। I need to talk so carefully like talking with the babies. Baby talk I need to do. और मुझे ऐसे संभल कर बात करना पड़ रहा है जैसे मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ। Otherwise you will get offended. नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे You will not even understand what I am trying to say. और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। That's a sad thing. और ये एक दुख की बात है। We should not be baby Christians. हम एक बच्चों के जैसे एक मसीह नहीं बनना है। We should desire to be mature. हमें एक बड़े समझदार इंसान जैसे बनने की इच्छा रखनी है। Let us have that heart to receive correction. और हमें ऐसा हृदय मन रखना है कि हम करेक्शन पाने का हम इच्छा रखें। We should not be always waiting and encouraging, willing to receive only encouragement. हमें बस प्रोत्साहन पाने की इच्छा नहीं रखनी है। No, we need encouragement, हमें प्रोत्साहन की जरूरत है, but just encouragement is not enough. लेकिन सिर्फ प्रोत्साहन ही काफी नहीं We है। also need solid food. हमें एक भोजन की भी जरूरत है। With only milk, baby will remain a baby. लेकिन सिर्फ दूध पीने से एक बच्चा ही रह जाएगा। With only solid food, we can grow to mature Christians. लेकिन एक अच्छा भोजन ही हमें
एक मसीह जीवन में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। With a sadness in his heart, he is saying that I am able to give you only milk और दुख के साथ पौलुस कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें दूध दे पा रहा हूँ, because you are still only baby Christians. क्योंकि तुम अभी तक एक बच्चों के समान ही हो, मसीह मसीह में हो। And 2-3 things he is saying that three characters of babies he's mentioning. और यहाँ पे 2 या 3 बच्चों का जो स्वभाव है उसके बारे में पौलुस One कह रहा is है। we are jealous to one another. पहला ऐसा कहा है कि हम एक दूसरे से जलते हैं These are always envious thoughts. और एक दूसरे के लिए हमें हमेशा बुरे ख्याल हैं There's a spirit of competition. और एक कंपटीशन की आत्मा है। We are not able to rejoice when someone else is blessed. और हम खुश नहीं हो पा रहे जब कोई दूसरा आशीषित पा रहा है। That is a sign of being a baby. और ये एक चिन्ह है कि हम अभी भी बच्चे हैं, But a mature person will not behave like that. लेकिन एक बड़ा मनुष्य, मैच्योर मनुष्य आदमी ऐसा नहीं करेगा। So it's good to ask, is there envy and jealousy inside us? ये हमें देखना चाहिए कि क्या मेरे अंदर जलन है दूसरे के लिए, Or we are able to celebrate the success, good thing happening in others' lives? या हम खुशी मना पा रहे हैं किसी और के जीवन में सक्सेस मिल रहा है तो। Yeah. A second thing is saying there is strife and quarrel among you. और दूसरी बात ये है कि आप दूसरों के बीच में कुड़कुड़ाहट है Yeah. Tendency to pick up quarrels, small quarrels. और झगड़ा करने की आत्मा है। We may not physically engage in a quarrel, और आप शारीरिक रूप से एक लड़ाई में नहीं जा रहे हो, but all this happen inside. लेकिन ये सब आपके अंदर हो रहा है, Quarrel in thoughts. एक लड़ाई वाली विचार। And we are not able to speak to some people from opening our heart, look into their eyes, और हम वो मनुष्य की आंखों में देख के हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं because there is quarrel inside. क्योंकि अंदर क्रोध और गुस्सा भरा हुआ है। And the third thing is kind of groupism, attaching with the people whom I like. और तीसरी बात है कि छोटा छोटा झुंड बनाना, जो हमें पसंद है बस उनके साथ बात करना। You can observe children now, they normally behave in school, so they have their own gangs. जैसे हम स्कूल में देखते हैं, जैसे जो बच्चे रहते हैं उनका खुद का एक छोटा छोटा गैंग झुंड रहता है। We should not be like that. We should not be like infants like that. और हमें वैसे नहीं रहना, एक छोटे बच्चों के समान हमें नहीं रहना है। What are we so good to encourage us and challenge us? और हमें प्रोत्साहन करना है एक दूसरे को। Leave your baby ways and come up higher. और हमें जो हमारा जो बच्चों के समान जीवन है वो छोड़ के ऊपर बढ़ना है। And we can be challenged. We can have the desire and prayer in our heart. Lord, I want to leave these baby ways. और हम ये चुनौती ले सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर ये इच्छा दे कि हम ये बच्चों के समान जीना बंद करें। And the Lord will provide us a strength. He will give us that ability to and lift us up. और परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, हमें सहायता देगा कि हम ऊपर बढ़ सकें। Hebrews chapter 5, इब्रानियों 5 verse 12. 12 वचन। Though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need of milk and not solid food. इब्रानी 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। So this is a verse which several times challenged me. और ये ऐसे वचन हमें कई बार चुनौती देते हैं। And I'm a believer for many years. और मैं बहुत सालों से विश्वासी हूँ। And I am, by age, I am supposed to be a teacher. My life should be an encouragement for others. और उम्र के हिसाब से मेरा जीवन दूसरों को सिखाने जैसा होना चाहिए। But I'm still living like a baby. लेकिन मैं अभी तक एक बच्चे के समान जी रहा हूँ। Lord, I want to be free from this life. परमेश्वर, मैं ऐसे जीवन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। I want to have solid food. I want to grow to a mature Christian. मैं भोजन खाना चाहता हूँ और मैं एक आत्मिक जीवन में एक मैच्योर इंसान के जैसे बनना चाहता हूँ। And I want to receive the ability to take hard things. और मैं आपसे सहायता पाना। I am not offended by others what they say.
और मैं दूसरे जो मुझे कहते हैं उससे मैं बुरा नहीं मानना चाहता। I don't feel bad when others don't respect me. और मैं जब दूसरे मेरा आदर नहीं करते तो मुझे बुरा नहीं लगना है। If I am not called for something, if I am not greeted on my birthday, that is okay. यदि मुझे कोई बुलाता नहीं है या मेरे बर्थडे पे मुझे कोई विश नहीं करता तो मुझे बुरा नहीं लगना Because चाहिए, now I am not a baby. I don't want to remain as a baby. क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं रहा और ना ही मुझे बच्चे जैसा रहना है। Philippians फिलिपियो chapter 3, तीसरा अध्याय verse 14. 14 वचन। We know this verse very well. और इस वचन को हम अच्छे से जानते हैं। I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. फिलिप्पी 3:14 निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So Paul understood and recognized his upward call. पौलुस इस बात को समझ गया कि उसको जो ऊपर परमेश्वर उसको ऊपर बुला रहा है। And he determined the Lord is reaching out his hand. और वो He understood the Lord is reaching out his hand to me. और वो समझ गया कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहा है ताकि वो ऊपर उठ सके। And I also want to stretch out my hand, hold his hand. और मैं भी चाहता हूं कि मैं मेरा हाथ बढ़ा के परमेश्वर का हाथ थामूं And I want to press on और मैं ऊपर की ओर बढ़ता चलूं towards that heavenly calling. और उस स्वर्गीय पुकार की ओर। So may God help us that we will not waste away our life. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम हमारा जीवन व्यर्थ ना जाने दें। Let that sincere desire be in our lives, that our lives, all of God's purposes should be fulfilled. और ये इच्छा हमारे जीवन में आनी चाहिए कि परमेश्वर की सारी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो। We should never be depressed and discouraged thinking about our past life. और पुराना जीवन को सोच के हमें निराश नहीं होना है या डिप्रेशन में नहीं रहना है। By remembering the failures, the wrong decisions we made in our lives. ये सोचकर कि हमने पिछले जीवन में कितने गलत डिसीजन लिए थे। But remember, the Lord can lift us up. और हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमें ऊपर The उठा Lord is सकता है। on our side. Who can be against us? और परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। Even if we have made wrong, even if we have made mess of our life, यदि हमने हमारे जीवन में काफी कुछ गलत कर दिया हो, if you are genuinely repented, लेकिन जब हम सच में मन फिराते and हैं if you trust the Lord, और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, the Lord can lift us up and surpass others. और परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है और हम काफी लोगों को पीछे छोड़ के ऊपर बढ़ जाते हैं। That's what happened to the woman of Samaria, और यही हुआ उस सामरी स्त्री के साथ, and that's what happened to Mary Magdalene. और यही हुआ मरियम मगदलिन के साथ। So there is nobody who need to think I have no second chance. और ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरा मौका नहीं है, There is no hope for me. और मेरे लिए कोई आशा नहीं है, Everything is lost for me. और सब कुछ मैं खो चुका हूँ। That is not true. और ये सच नहीं है। So long as there is breath in our noses, we have hope. और जब तक हमारे अंदर सांस है हमारे पास आशा है। If you are sincere यदि और आप जब सिंसियर हो and if you are willing to trust the Lord, abandon ourselves to the Lord's hands. और परमेश्वर पे विश्वास करते हो, आप खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। God can lift us up and give us another life. परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा और हमें एक और नया जीवन देगा। Now there's a beautiful verse in Joel chapter 2. और एक काफी खूबसूरत वचन है जोएल दूसरा I अध्याय think में। Joel chapter 2:25. जोएल दूसरा अध्याय 25 वचन। The Lord will restore the years that we have lost. That is the verse. और परमेश्वर हमारे बीते हुए वर्षों को फिर से लाएगा, ऐसा वचन है। With the Lord it is possible. परमेश्वर के लिए सब संभव है। The years that the locusts have eaten. और वो वर्ष जो टिड्डे खा चुके हैं, And the Lord can restore us if you sincerely turn back to Him. और जब आप सच्चे मन से मन फिराते हो तो परमेश्वर उस वर्षों को फिर से ला सकता है। May God really help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।